गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एड्रेस मैपिंग विद द हेल्प ऑफ एड्रेस, हाउ वी फाइंड द एड्रेस which is in the network, which means that the destination in the network. Also, we see in next lectures about error reporting and multicasting, what is the purpose of error reporting and how it works and how the packets are multicasted in them. Firstly, we know about address mapping. Basically, in addressing, there are four types of addresses, that is physical address, logical address, port address, and specific address. Physical address are the address which is permanent, which is unique, which is the address of your Ethernet card. Okay, and the logical address is the IP address, also called as IP address, which is different in different networks or common in public networks. So we see that the delivery of packet from host to router. Host, acha. What do you mean by packet? Packet is from which layer? Packet defines which layer? Sir, network. Yes, this is a network layer protocol. ठीक है, फिर पैकेट्स टू होस्ट और अ राउटर रिक्वायर्स टू लेवल ऑफ एड्रेसिंग, दैट इज लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस. In this, if we send any data from source to destination, we know the both address of that system or a destination. So with in this, we need to be able to map a logical address or the physical address with the help of vice versa, which means that if we know about logical address, we can find the value of physical address. If we know about physical address, we can find the value of logical address of that physical address. This can be done using either static or dynamic mapping. In this, we see this protocol that is known as ARP. ARP and RARP are known as the binding protocol addresses. In this binding protocol addresses, they are bind with logical address and the physical address. In this diagram, a system A want to send a packet to system B. System A only know about their physical address. Oh, sorry, logical address. System A only know about their logical address. They send a request in their network. They send a request in their network. With the help of their logical address, they ask about physical address. They ask about the physical address of that logical address. This request is broadcasting, which means that system A broadcasts each and every node which is connected in a network, and say what is the physical address of this IP address which is mentioned in the box. If the IP address is same and the message is going to the same IP address, they only reply that the node physical address is this, which is in the form of reply, which is in the form of unicast. Okay, समझ में आया बेटा आप लोगों को? एक बार मैं अपने लैंग्वेज में फिर से बोलूं? सर एक बार और समझा दो. देखिए, अब इसका मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं. एग्जांपल ले रहा हूं. There are two type of address, that is known as logical address and physical address. अभी आप लोग कौन से सेमेस्टर में हो बेटा?
फिफ्थ सेमेस्टर। तो फिफ्थ सेमेस्टर में हो आप, और आपके दो टाइप के एड्रेस बताओ, आप कौन कौन से दो टाइप के एड्रेस हो सकते हैं यहाँ पे। जैसे मेरा कम्युनिकेशन आप रजिस्टर लोगों से हो रहा है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप और मेरे बीच में मैं दो नाम से या दो मेथड या दो चीजों से मैं आपको बुला सकता हूं। वो क्या क्या हो सकती है? रोल नंबर और नेम। वेरी गुड निखिल, रोल नंबर एंड नेम। अब मैंने बोला कि जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस होता है, और जो फिजिकल एड्रेस होता है वो आपका मैक एड्रेस होता है। आप मुझे ये बताओ, मैक एड्रेस जो बात करता हूं वो ऑलवेज यूनिक होता है। क्या होता है? ऑलवेज यूनिक। यूनिक। ठीक है। अब ये जो दो चीज आपने मुझे रिप्लाई में दी, दैट इज योर नेम एंड योर रोल नंबर, इन दोनों में यूनिक क्या है? रोल नंबर। वेरी गुड। तो रोल नंबर आपका यूनिक है, विच इज योर मैक एड्रेस। वेरी मैक विच इज योर मैक एड्रेस। तो अनदर वाली चीज क्या हो जाएगी? दूसरी वाली लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, नाम आपका लॉजिकल एड्रेस हो जाए। ठीक है। अभी जिस ड्यूरेशन, जिस कोर्स में आप हो, उस ड्यूरेशन के बेस पे बात करो। ठीक है। अब मैं इस चीज को थोड़ा डिफरेंट वे में देखना चाहता हूं। अभी आपने कौन से इसमें बात करी? ये 4 साल की बात करी। ठीक है। अब मैं आपके जीवन के जितने आज तक पॉइंट है, वहां से लेके मैं यहां तक आना चाहता हूं। आपके स्कूल में आपका रोल नंबर था? यस सर। ठीक है। आपके कॉलेज में आपका रोल नंबर है? यस सर। यस सर। पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे उसमें भी एक रोल नंबर मिलेगा। यस सर। आपने जेडब्ल्यू दिया था उसमें भी एक रोल नंबर होगा, अगर दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो भी ठीक है। दिया होगा तो आपका यूनिक रोल नंबर होगा। ठीक है। आप कोई कॉम्पिटिटिव एक एग्जाम देंगे तो उसमें भी एक रोल नंबर होगा। यस सर। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर। ठीक है। अगर वहां से लेके आज तक आप बात करते हो, आपके बर्थ से लेके स्कूलिंग चालू होने से लेके आज तक की बात करते हो, तो आपका फिजिकल एड्रेस क्या हो जाएगा? मेरा नेम हो जाएगा सर। आज तक कॉमन क्या चला आपका फिजिकल एड्रेस? सर नाम। वेरी गुड, योर नेम अलॉन्ग विथ योर सरनेम, योर फुल नेम, विच इज मीन दैट। ठीक है। शुरू से लेके आखिरी तक आपका फुल नेम जो चला आपका, वो फिजिकल एड्रेस। और लॉजिकल एड्रेस क्या हो गया? रोल नंबर। रोल नंबर। अब ये जो आधार आईडी। आधार आईडी इज योर आईपी एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस। आधार आईडी physical, ऑलवेज यूनिक इन योर लाइफ, फिजिकल एड्रेस है ना? ऑल आधार आईडी इज ऑलवेज यूनिक इन योर लाइफ एज वेल एज आफ्टर लाइफ। जो आधार आईडी मुझे मिल गई है, मैं रहूं या ना रहूं, वो आधार आईडी दूसरे को अलाउड नहीं होगी। यस सर। ओके। ठीक है। तो ये काम एक हुआ हमारा। अब बात कर रहे हैं कि जैसे ही हमें आधार आईडी मिली, सॉरी आधार आईडी पे नहीं जाते हम हाँ चलो आधार आईडी पे ही चले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। विकी अच्छा एग्जांपल दिया। एक आपका आधार आईडी हो गया, दूसरा आपका रोल नंबर हो गया। तो जब हम रोल नंबर बात करते हैं तो हर फेज में एक रोल नंबर आपको मिला। ओके। यस सर। स्कूलिंग में एक मिला, Yes. इसमें एक मिला, विच मीन्स दैट डिफरेंट नेटवर्क्स हो गए वो आपके। यस सर। योर लाइफ के डिफरेंट नेटवर्क्स हो गए, वो डिफरेंट नेटवर्क्स आपको मिल गए। अब उस नेटवर्क के बेसिस पे, जैसे अभी आप कॉलेज में आ गए हो, ओके, वो कॉलेज में आ गए हो, और जैसे ही आए हो तो सिस्टम कॉलेज का एक क्या बोल रहा है कि लुकिंग फॉर योर फिजिकल एड्रेस नोट विथ योर आईपी एड्रेस। इसने एक रिक्वेस्ट करी क्लास के अंदर, मैं आया और मैंने बोला कि ये रोल नंबर का आधार नंबर क्या है, या ये रोल नंबर का नाम क्या है। मैं ये पब्लिक अनाउंसमेंट करूंगा या
एक एक बच्चे को जाके बोलूंगा? मेरे लिए क्या आसान है? सर पब्लिक पब्लिक अनाउंसमेंट। दैट इज नोन एज रिक्वेस्ट। अनाउंसमेंट करोगे। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग कर दी मैंने। इस रोल नंबर का आधार नंबर क्या है? ये रोल नंबर 1 पे गया, रोल नंबर 2 पे गया, रोल नंबर 3 गया, तो ये विथ आईपी एड्रेस ये रिक्वेस्ट सभी के पास चली गई। अब जो बच्चा, उसका जो रोल नंबर होगा रिप्लाई वही करेगा या सब करेंगे? जिसका रोल नंबर है जिसका रोल नंबर होगा वही करेगा। तो उसने रिक्वेस्ट की, रिप्लाई कर दी कि माय फिजिकल एड्रेस इज दिस। मेरे पास जिसका रिप्लाई आएगा मैं वो मानूंगा। मेरा आधार नंबर ये था, मेरा फिजिकल एड्रेस ये हो गया, मेरा नाम ये, मेरा आधार नंबर ये है, जो मेरा रोल नंबर ये। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, देर आर 3 टाइप ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ओ सॉरी कास्टिंग। फर्स्ट इज यूनिकास्टिंग, नोट कर लें कहीं प्लीज। फर्स्ट इज यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये अपन ने कराया था, है ना? तो यहां पे 3 टाइप की कास्टिंग यूज हो रही है। यहां पे नेटवर्क लेयर का इस तरीके से पता करता है आगे वाले लेयर में जाके कि भाई साहब इस नेटवर्क से ये आईपी एड्रेस बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, यहां ये चीज फिनिश हुई। अब सेम है एआरपी के बाद में। एआरपी कैन बी यूजफुल इफ एआरपी रिप्लाई इज कैश्ड, kept in cache memory for a while। ये मेमोरी में रखते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी चीज में बताता हूं। जब राउटिंग होती, व्हाट डू यू मीन बाय राउटिंग एंड रूटिंग? रूटिंग मतलब रूट को डिफाइन करने वाला। तो जैसे अगर हम बात करें, हमारा नेटवर्क आईटी 5th सेमेस्टर है, तो आईटी 5th सेमेस्टर के हमारे 2 रिप्रेजेंटेटर कौन है? हमारे सीआरस। तो हमारे सीआरस अपने टेबल में 2 चीज रखेंगे। क्या 2 चीज रखेंगे? फर्स्ट, रोल नंबर along with physical address, id ip address along with physical address। ये वाला आईपी एड्रेस का ये फिजिकल एड्रेस, ये वाला आईपी एड्रेस का ये फिजिकल एड्रेस, ये वाला आईपी एड्रेस का ये फिजिकल एड्रेस। और ये जो डेटा अपडेट करेंगे, ये हर 35 सेकंड या 40 सेकंड के बाद डेटा पैकेट अपडेट। ठीक है, मतलब वो जो पैकेट है वो नेटवर्क में घूमता रहेगा, हर 35 सेकंड के बाद ट्रिगर होगा और वो घूमेगा, फिर 35 सेकंड के बाद ट्रिगर होगा, फिर घूमेगा, फिर 35 सेकंड के बाद ट्रिगर होगा और घूमेगा। ठीक है, अब एआरपी पैकेट का एक फॉर्मेट होता है। किसी भी पैकेट जो है, या फ्रेम्स है या सेगमेंट्स है, ठीक है, और सबसे आखिरी में क्या था? फ्रेम, पैकेट्स, सेगमेंट्स, क्या था फिर लास्ट में? एप्लीकेशन लेयर में डीएनएस, मैसेजेस। सर मैसेजेस थे। ठीक है, तो वो जो भी चीज है तो उसका एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा, एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा। जैसे हर टीचर का एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। कोई क्लास के फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट 5 मिनट्स में अटेंडेंस लेता है, कोई लास्ट 5 मिनट्स में अटेंडेंस लेता है। ठीक है, एक बोलने का तरीका होता है किसी का, तो एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। तो उसी तरीके से जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इसका भी एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है। तो हर पैकेट का, हर सेगमेंट्स का, हर फ्रेम का, हर मैसेज का एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, आईपी एड्रेस कितनी लेंथ की होती है? 32 बिट। वेरी गुड, 32 खाली नहीं, 32 बिट्स पे आएगा। अब बाइट्स में कन्वर्ट करो तो कितने बाइट की होती है? 64, 2 to the power 32। बाइट्स। यस सर 64 बाइट। सर 8 से मल्टीप्लाई सर कर 256 बाइट। सर अच्छा। 32 into 8। अच्छा,
अच्छा, कितने बाइट्स होते हैं बेटा? 1 बिट सर इक्वल्स 32 बिट 32 बिट से 8 बाइट बनेगी सर। 8 बाइट बनेगी। सर 4 बाइट। वेरी गुड, 4 बाइट। क्यों? हाँ, 1 बिट 8 बिट इक्वल्स टू, 1 byte. मतलब बिट ज्यादा है बाइट कम है। 32 बिट है, 32 से कम होगी बाइट। हाँ, यस और नो? हाँ, yes. ठीक है, तो 32 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 4 byte. 4 बाइट। तो आईपी वर्जन 4 का 4 बाइट लेंथ होगा आईपी एड्रेस का, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड होंगे। ओके, अब यहां पे कोई भी पैकेट, कोई भी मैसेज, कोई भी सेगमेंट्स इन अ वर्जन ऑफ IPv4, उसकी जो विड्थ होगी स्टार्ट ए से एंड तक, यहां 32 बिट की एक वैल्यू होगी। ऐसे 32 बिट के नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं, जैसे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6। ठीक है, तो हमारे पैकेट के अलमारी एक तरह से समझ लीजिए, ऊपर वाला खाना, उसके बाद फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, मतलब 32 बिट से ज्यादा वैल्यू नहीं कर सकते हम, चौड़ा कर नहीं सकते। उसके बाद उसके नीचे हम भले ही कितना भी बढ़ा दें। ठीक है, ये किसी भी मैसेज फॉर्मेट का, पैकेट फॉर्मेट का, सेगमेंट का मेथड होता है। क्लियर हो गई ये चीज? जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया। अब यहाँ पे ARP का पैकेट फॉर्मेट है। जो ARP का पैकेट फॉर्मेट है उसकी लेंथ कितनी हो गई? 32 बिट। हमेशा ध्यान रखना 32 बिट से ज्यादा नहीं होगी, 32 बिट से कम नहीं होगी, 32 ही होगी IP वर्जन V4 में। क्लियर है ये इंस्ट्रक्शंस? Yes, sir. सर अब इस 32 बिट में फर्स्ट इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब बाइट के टर्म में ले लिया। 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट एंड 4 बाइट। ठीक है, उसके अंदर भी इंडिविजुअल हो सकते हैं, बिट वाइज भी हम डिवाइड कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे 4 बाइट में दे दिया। तो हमारे पास जो हार्डवेयर एड्रेस होता है, तो ARP का पैकेट फॉर्मेट ये बनाएंगे आप लोग, अभी कंटिन्यू में बनाए। मैं इस वीडियो की लास्ट में सभी से ARP का पैकेट फॉर्मेट देखना चाहूंगा। तो फर्स्ट 16 बिट्स और 2 bytes, 16 bits or 2 bytes is a type of hardware. ARP पैकेट में first 16 bits और 2 byte is a type of hardware. हम देखेंगे इसको। Second 16 bits और 2 bytes is a type of protocol type. किस टाइप का प्रोटोकॉल है ये? थर्ड, नेक्स्ट लाइन, first 8 bits is a type of hardware length. 8 bit hardware length के बारे में बताएगा। सेकेंड, 8 bits और 1 byte is a type of protocol length. ये किस टाइप का प्रोटोकॉल है और उसकी लेंथ कितनी है, यहां वो स्टोर हो जाएगी। थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 4, फिफ्थ is a type of operation. What type? There are 2 type of operations in ARP and RARP. Which type of operations are there? बताइए नाम इसका, अभी हमने देखे हैं। ये कौन से टाइप का ऑपरेशन कर रहा है क्लास? क्या है ये? सिस्टम ए रिक्वेस्ट, और इसको रिक्वेस्ट के एवज में क्या मिल रहा है? Reply. रिप्लाई। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑपरेशंस। समझ में आया? कौन कौन से? एक रिक्वेस्ट और एक रिप्लाई। ARP रिक्वेस्ट मेथड पैकेट जा रहा है या रिप्लाई पैकेट आ रहा है, वो किस वैल्यू पे डिपेंड करेगा? रिक्वेस्ट होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और रिप्लाई होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या लिखा हुआ है? 2. 2 हो जाएगी सर। ठीक है, रिक्वेस्ट अगर इस पैकेट फॉर्मेट में रिक्वेस्ट ऑपरेशन में 1 आए, विच मीन्स दैट इट इज फॉर
Request. अब रिक्वेस्ट है तो मैसेज कौन सा टाइप का है? ब्रॉडकास्ट है, यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है? रिक्वेस्ट 1 है ना? तो देखिए रिक्वेस्ट है तो ये ब्रॉडकास्ट है, मल्टीकास्ट है, यूनिकास्ट है? यूनिकास्ट। Broadcast. ब्रॉडकास्ट। 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 इसके बाद एक स्टेप हो, अगर ये रिक्वेस्ट है तो ये किस चीज को ढूंढ रहा है? Physical address. ओके, क्या ढूंढ रहा है? फिजिकल एड्रेस करस्पॉन्डिंग विथ आईपी एड्रेस। ठीक है, अगर ये रिप्लाई है तो वो किस टाइप ऑफ मैसेज है? मैसेज का कौन सा टाइप है? कास्टिंग क्या है उसकी? यूनिकास्ट। यूनिकास्ट है। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। ये जो रिक्वेस्ट है अगर मैसेज में रिप्लाई फॉर्मेट में है, टू वैल्यू आई है, विच मीन्स दैट व्हाट इज टाइप ऑफ मैसेज इट इज? यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट? So unicast. यूनिकास्ट सर। यूनिकास्ट। ठीक है, ये क्या लेकर आ रहा है? Physical address. फिजिकल एड्रेस लेके आ रहा था। आप फिजिकल एड्रेस लेकर आ रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम देख के हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। इस पैकेट फॉर्मेट को देख के हमें पता लग सकता है। Yes. Sir. यस और नो? यस हाँ सर। सर। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे दूसरा चीज आता है, सेंडर हार्डवेयर एड्रेस। मेरा हार्डवेयर एड्रेस क्या है जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं? ठीक है, which means that hardware address is also known as MAC address. मैक एड्रेस। मैक एड्रेस। ठीक है, 6 बाइट इसके लिए हो गई है। ठीक है, ठीक है। सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस, मैं जो भेज रहा हूं मैं अपना आईपी एड्रेस भी बाइंड करके भेजूंगा। ठीक है, टारगेट हार्डवेयर एड्रेस मुझे फाइंड करना है। टारगेट हार्डवेयर एड्रेस मुझे फाइंड कर रहा है। अगर यहां पे रिप्लाई वैल्यू है, अब आप इस चीज को एक बार देखिए, अगर रिक्वेस्ट है तो टारगेट एड्रेस वैल्यू क्या जाएगी? ब्लैंक। क्यों? क्योंकि मुझे फाइंड करना है। ओके यस सर। ओके, अगर रिप्लाई मेथड ऑपरेशन है, विच मीन्स दैट टारगेट की वैल्यू आ रही है, तो ये रिप्लाई के वक्त में यहां पे वैल्यू मिलेगी, रिक्वेस्ट के वक्त में यहां पे वैल्यू नहीं मिलेगी। टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी का एड्रेस मिल जाएगा। तो कौन कौन सी फील्ड हमेशा मिलेगी रिक्वेस्ट में? रिक्वेस्ट में ये वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, रिप्लाई में सारी की सारी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर रिप्लाई है तो ब्रॉडकास्ट किस टाइप का हो गया ये पता लग जाएगा। ठीक है, अब यहां से थोड़ा स्टेप एक और आगे लेते हैं। हमारे हार्डवेयर का टाइप क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर एंड देयर टाइप? हार्डवेयर टाइप क्या है? कितने टाइप ऑफ हम नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए दो मेथड्स होती है हमारे पास। कौन कौन सी दो मीडियम्स होते हैं? मीडियम्स ही बात करते हैं, चलो। सर वायर्ड और वायरलेस। वेरी गुड, वायर्ड एंड वायरलेस। तो क्या दोनों मीडियम का डिवाइस सेम है? नहीं सर। दोनों हार्डवेयर सेम है? नहीं सर। नो सर। आपको हार्डवेयर टाइप का मेथड मिल गया। कौन सी टाइप का हार्डवेयर है ये? वायरलेस। अब ये सिर्फ नेटवर्क एंड की बात करते हैं, हम एक स्विच से दूसरे स्विच में भी कनेक्ट करते हैं, तो वो भी उस टाइप का हार्डवेयर वहां पे पहुंच जाता है। हम एक स्विच से राउटर में भी कनेक्ट करते हैं, उस टाइप का भी हार्डवेयर हमें पता लगता है। अब वायरलेस हो गया, राउटर हो गया, हब हो गया, स्विच हो गया, जो भी नेटवर्क डिवाइस कनेक्शन के काम पे आती है, दैट देयर हार्डवेयर टाइप। ओके हो गई ये मेथड?
ये फील्ड भी फिनिश हुई हमारी। Yes, ठीक है, sir. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोकॉल टाइप? प्रोटोकॉल टाइप क्या है, मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम कनेक्टेड है? वायरलेस मीडियम में कनेक्टेड है, वायर्ड मीडियम में कनेक्टेड है। अगर हम वायर्ड मीडियम में हैं तो कौन सी कैट6 केबल है, और उसके बाद की फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, या कोई और दूसरे टाइप की केबल है? ठीक है, ये पता लगे। अगर वायरलेस मीडियम में है तो कौन से मेगाहर्ट्ज पे हम कनेक्टेड है? क्या दो जो मीडियम है वो दोनों वायरलेस है, या एक वायर्ड है और एक वायरलेस है, एक वायर्ड में राउटर के साथ कनेक्टेड है, या उसके अंदर किस टाइप का हार्डवेयर है, तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो। ठीक है, तो हमें उसे उस मेथड को पता लगेगा कि हम किस कैटेगरी से कनेक्टेड। ठीक है, अब उस हार्डवेयर की लेंथ कितनी है, उस प्रोटोकॉल की लेंथ कितनी है, ऑपरेशंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस तरीके से एआरपी पैकेट हमारा बनता है। अब ये जो एआरपी पैकेट है, इसके अंदर हमारा एनकैप्सुलेशन होता है। किसका एनकैप्सुलेशन होता है? हमने दो चीज देखी थी पैकेट के अंदर। ये सिर्फ हमारा डेटा भेजने की पैकेट का काम है। जो हम डेटा भेज रहे हैं ये यहां से लेके यहां तक होता है। उसके अलावा भी हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़े थे, याद करो। तो हमने 1000 डिवाइडेड बाय 10 करा था, तो 100 नोट्स आप लोगों ने बोले थे। फिर मैंने बोला था कि उसके अंदर भी कुछ वैल्यूज होती हैं, किस कैटेगरी की है, तो वो उसके अंदर वो वैल्यू माइनस हो जाती है। तो ये उसका एनकैप्सुलेशन पैकेट। ठीक है, सोर्स एड्रेस कौन सा है, डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा है, वो किस टाइप से कनेक्टेड है, जो डेटा हम भेज रहे हैं वो एआरपी आरएआरपी में ये है। और एक मेथड होती है सीआरसी। सीआरसी स्टैंड्स फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, नोट कर लेना कहीं कर। ठीक है, और ये डायग्राम भी बनाए। बना लिया? सर आप थोड़ा प्रीवियस स्लाइड्स दिखा देंगे सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाया था। स्क्रीनशॉट ले लूंगा। मिल गए? ले लिया? सर आपने सीआरसी का फुल फॉर्म क्या बोला? सर इससे पहले वाली कोई? अब वो बाद में बताऊंगा बेटा। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये बना ले सभी लोग। ये बन गया, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें, बनाना है सभी को। अब ये है, चार केस होते हैं एआरपी को आईपी ढूंढने में। तो एक सेंडर से होस्ट को कनेक्ट करता है, सेकंड केस इज सेंडर टू राउटर कनेक्शंस, थर्ड केस इज राउटर टू राउटर कनेक्शंस, एंड फोर्थ केस इज राउटर टू रिसीवर कनेक्शन। विच मींस दैट एक सेंडर से एक होस्ट के बीच में दो राउटर लगा दें अगर, तो चार कैटेगरी में हमारे पास डेटा ट्रांसफर हो सकता है। एक डेस्टिनेशन से आईपी डेटाग्राम के थ्रू, आईपी एड्रेस से राउटर के पास, राउटर से राउटर के बीच में, और एक राउटर से डेस्टिनेशन के बीच। ठीक है, तो ये चार केसेस होते हैं अपने एआरपी। रिक्वेस्ट इज फॉर ब्रॉडकास्ट, रिप्लाईज फॉर यूनिकास्ट, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। केस 1, सेंडर से होस्ट विद इन अ नेटवर्क, बिटवीन टू नेटवर्क्स, between two networks and within a network from router। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपन नेक्स्ट क्लास में इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और यस सर। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ, यस सर।